Hello students, I welcome back to you to my YouTube channel UP Board Learning Classes by Dilip sir. Today we are going to study the summary of the lesson A Letter to God. The chapter's name is A Letter to God and its writer is G.L. Funes. Writer is G.L. Funes. A Letter to God is the name of a chapter and its writer is G.L. Funes. In this lecture, we will complete the summary of the chapter in a very easy words through the pictures so that everyone can understand easily. Okay, let's start. In this chapter, there is a farmer. You see in the picture, here is a farmer and his name is Lencho. He has firm faith in God. He has firm faith in God. He works very hard on his field. His field has corn crop. His field has corn crop. And he lives in a valley. He lives in a valley. You see in this picture, I will show you. Here is his house. You see, his house is lonely, means alone. His single house in the entire valley. And his house is situated on a low hill. You see, there is a hill. This is hilly area. This is hill and this is hill. And this midway is called valley. ये एक पहाड़ी देख रहे हैं, नीचे एक पहाड़ी है और बीच का जो एरिया है इसको हम घाटी कहते हैं, वैली. और इसी वैली में इसका घर बना हुआ आपको दिख रहा है, ये घर है इसका, his house, and that is situated on a low hill and this is only house, single house. इसके अलावा कोई घर नहीं है. So where, if the question is asked like this, where is Lencho's house situated? So what will be the answer? Lencho's house is situated on a low hill in a valley. Okay. Now we see this is corn crop. You see in this picture, this is a field of a corn crop and this is the Lencho's crop. He worked very hard. He grew corn crop and it needs water, at least some shower. हल्की फुल्की फुहार की ज़रूरत है पृथ्वी को, फसल को. पानी नहीं बरस रहा है काफ़ी दिनों से. It has not been raining for long time, so everybody was wishing rain. हर कोई वर्षा की उम्मीद किए हुए था. लेंचो भी बारिश की आस लगाए हुए बैठा था और कुछ समय के बाद फिर वर्षा स्टार्ट होती है. After some time it rains very hard and there was also a storm along with the rain. वर्षा के साथ साथ बहुत तेज़ तूफ़ान आता है और तूफ़ान के साथ ओले पड़ते हैं. Now you can see in this picture there is a heavy rain and hailstones. You can see these white pieces of ice, round pieces of ice. These are hailstones, and due to hailstones his crop was totally destroyed. You can see in this picture his crop is destroyed. In the previous picture we saw his was beautiful crop. Here you can see this is a beautiful crop, and now you see his crop was totally destroyed. His crop was totally destroyed. उसकी फसल जो थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी. When Lencho's crop was destroyed, nothing was left in his field. उसकी फसल नहीं बची थी, कुछ भी नहीं बचा था. फूल पत्तियाँ जो भी थे वो सब नष्ट हो चुके थे. अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. तब उसने क्या किया? भगवान को पत्र लिखा. Lencho wrote a letter to God.
प्रश्न ऐसे भी आता है कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, what were the circumstances which forced him to write a letter to God? कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा? तो उसकी फसल नष्ट हो गई थी वर्षा के कारण, तूफान के कारण, हेल स्टोन्स के कारण. His crop was totally destroyed by hailstones. That's why he wrote a letter to God. You can see in this picture, this is letter. You see a letter, this is letter and this is envelope. Envelope means लिफाफा जिसमें हम पत्र को रखते हैं. तो लेंचो ने ये पत्र लिखा और इस लिफाफे में रखकर इसको बंद कर दिया. He wrote a letter to God and he carried it to पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट इट, और उस पत्र को वो ले जाता है पोस्ट ऑफिस में. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं हम लोग, पत्र डालने जाते हैं और वहाँ पर बहुत से कर्मचारी होते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, दे वर्क देयर. देयर इज़ अ पोस्ट मास्टर. उस पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है पोस्ट मास्टर होता है. और यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे साइड में दिया गया है, दिस इज़ लेटर बॉक्स, मेल बॉक्स. इस मेल बॉक्स में उसने पत्र को डाल दिया. लेंचो रोट a letter to God, he carried to the post office and he dropped the letter into the mail box. और उस मेल बॉक्स में उसने पत्र डाल दिया. और उस पत्र में उसने क्या लिखा था? What did he write in the letter? In the letter, Lencho asked 100 pesos from God. उसने ईश्वर से 100 pesos. Pesos is a करेंसी, एक मुद्रा का नाम है. जैसे इंडिया में रुपए चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, इस प्रकार से ये जो स्टोरी है एक अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पर पीसोज़ चलते हैं. पीसोज़ एक करेंसी, एक मुद्रा का नाम है. तो उसने उस पत्र में 100 पीसोज़ डिमांड किए. 100 पीसोज़ उसने ईश्वर से मांगे. लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड एंड डिमांडेड 100 पीसोज़ so that he could survive and he sowed crop. वो अपनी नेक्स्ट फसल आने तक जीवित रह सके, परिवार को खिला पिला सके और नेक्स्ट जो फसल है वो उसको बो सके, बुवाई कर सके. इसलिए उसने 100 पीसोज़ ईश्वर से मांगे. When Lencho posted the letter, so the one of the post office employees means postman took the letter. यहाँ पर देख रहे हैं आप इस पिक्चर में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं और वो उनमें से एक पोस्टमैन क्या करता है, वो लेटर बॉक्स से पत्र निकाल लेता है और उस पत्र को ले जाकर पोस्ट मास्टर को देता है. पोस्ट मास्टर उसको देखता है एंड ही स्टार्टेड लाफिंग. उसको पढ़कर हंसने लगता है क्योंकि उसने अपने लाइफ में कभी भी इस प्रकार का पत्र नहीं देखा था जिस पे ईश्वर का पता लिखा हुआ था या ईश्वर के लिए पत्र लिखा हुआ था. क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ दैट सच टाइप ऑफ लेटर वाज रिसीव्ड बाय हिम. इस प्रकार का पत्र उसको मिला. और एक चीज़ उसको लेंचो की ईश्वर के प्रति जो आस्था थी उसको देखकर भी वह सरप्राइज्ड हुआ. नाउ द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर. और पोस्ट मास्टर क्या करता है, उस पत्र को आंसर करने यानी जवाब देने के बारे में निर्णय करता है. एंड ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं. ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट some part of their salary to donate, to do some charity to give Lencho as Lencho demanded in his letter. They all collected and they collected 70 pesos. They all contributed and the collection was 70 pesos. And postmaster sent the letter keeping the money in the letter. And the next morning, next Sunday we can say, अगले रविवार को
लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और पूछता है वहाँ पर क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो पोस्ट ऑफिस पे जो कर्मचारी थे वो बताते हैं कि हाँ उसके लिए एक पत्र है। नाउ लेंचो ओपन्स द लेटर एंड ही फाइंड्स मनी देयर and there was no surprise for Lencho. Seeing the money, Lencho was not surprised because such was his belief. क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था कि उसको पैसे प्राप्त होंगे, भगवान उसकी मदद करेगा, ऐसा उसको विश्वास था। But when he counted the money, लेकिन जब वो पैसे गिनता है and he found that short of money कि पैसे कम थे, there were only 70 pesos, so he became angry and he again started writing letter to God. एंड ही रोट इन द लेटर, पत्र दोबारा लिखता है और इस बार पत्र में लिखता है, भगवान से कहता है कि भगवान मुझको इस बार पैसे डायरेक्टली सीधे मुझको भेज देना, पत्र के माध्यम से मत भेजना। डोंट सेंड द मनी थ्रू द मेल बिकॉज ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कहता है पत्र में कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो सभी बेईमान हैं, क्योंकि ऐसा उसका मानना है। एज लेंचो थॉट दैट गॉड वुड हैव सेंट हिम 100 pesos बट द 30 pesos वुड हैव बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। उसका मानना रहा होगा कि ईश्वर ने उसको 100 pesos भेजे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने शायद उनमें से 30 pesos जो हैं वो निकाल लिए हैं। इसलिए वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कहता है बंच ऑफ क्रूक्स। ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब बेईमानों का झुंड, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। देखिए जो लोग उसकी मदद करते हैं और उन्हीं को वो बेईमानों का झुंड कहकर बुलाता है, लेकिन ये उसका विश्वास था कि ईश्वर उसको पैसे देने से मना नहीं कर सकता है। तो हम इस स्टोरी में देखते हैं कि इफ़ वी हैव अ बिलीफ सो आवर विश इज़ फुलफिल्ड। अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास अगर हो तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। एज वी हैव सीन इन दिस स्टोरी, लेंचो had firm faith, deep faith, everlasting faith in God, in Almighty, and his wish is fulfilled. So we have learned this idea, this lesson, that we must have belief in God, belief in ourselves, and so we can fulfill our wishes. Thank you. We will learn detailed explanation of the chapter of the text in the next video, and I request to all of you, please subscribe the channel, like the videos, and share as much as possible so that everybody can get advantage, benefit out of this as much as possible. Thank you everyone. Goodbye. Thank you.